Bismillahirrahmanirrahim. And today video we are going to implement the stock categories. कि स्टॉक कैटेगरी हमारे पास कैसे, तो यहाँ पर एक मेन्यू आइटम बनाएंगे, फिर उसमें हमारे पास एक स्टॉक कैटेगरी होगा। स्टॉक कैटेगरी में हम अपने स्टॉक की कैटेगरीज को हैंडल करेंगे, मैनेज करेंगे। जैसे यहाँ पर कोल्ड की ड्रिंक्स है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स हमारे पास हो गए, डिशेस हमारे पास होंगे। चलिए मैं ऐसे एक कैटेगरी को ऐड करता हूँ, दैट कैटेगरी इज द अदर कैटेगरी। ये हमारे पास वो कैटेगरी होगा जिसमें हमारे पास अदर जो है आएगा हमारे पास। तो चलिए मैं वो क्रिएट करता हूँ। सो नाउ यू विल सी हियर दिस इज द अदर। अब मैं इसको एडिट करता हूँ, ठीक है। सो चलिए मैं कैटेगरी यहाँ पर डालता हूँ पिज़्ज़ा, ठीक है। पिज़्ज़ा भी एक कैटेगरी है, डिफरेंट टाइप ऑफ पिज़्ज़ा हमारे पास होंगे यहाँ पर। जब मैं अपडेट करूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा पिज़्ज़ा, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करते हैं। सो नाउ ओपन द ERD स्टॉक एंड देन so now to start the stock item category table, तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। So now I'm going to open the project, this one. So now go to the solution explorer and then we are going to add the model. Okay, so first we are going to create model for this table. So now go to the DB layer, then go to this and then again here, and this is the stock item category table. Okay, so now copy the name of this table and then go to the solution explorer and add inside a model for this table. So click on the add and add the class, which is the MV. That is the MV, and then add. And then copy all the fields, all the properties of this item table. Copy these fields and now paste here. This is the user. So now I'm going to add the username here, and now remove this created by user ID is the uh, created by. This is the username. Okay, and this is the visible status, so string, and this is the visible status. So that's it. Okay, the next we are going to create the model for the create, retrieve and update. So now right click and create the model, and this is the CRU create, retrieve, update, and then add. Okay, the next I'm going to this address and then I'm going to copy. Okay, the first I'm going to this stock item category table and again copy this field, these fields, and then paste here. Okay, so now that's done. अब next यहाँ पर जो है हमें visible status और इसकी list चाहिए. So that's going to be inside and user status and gender. Okay, user status now open and I'm going to scroll. Okay, forget it. अब नेक्स्ट हमारे पास जो है हम वहां पर एक लिस्ट को क्रिएट करते हैं जो गेट करेगा रिकॉर्ड को. सो नाउ प्रॉपर्टी एंड दिस इज द वर्चुअल, मार्क इज वर्चुअल एंड देन लिस्ट, और लिस्ट हमारे पास होगा स्टॉक आइटम कैटेगरी एमवी एंड देन स्टॉक कैटेगरी, जस्ट राइट हियर द लिस्ट. ओके, दैट्स इट, लिस्ट, या यहाँ पर जो है वो कैटेगरी लिस्ट लिखिए या लिस्ट ऑफ कैटेगरी, जो भी आपको लिखना है. यहाँ पर सिर्फ कैटेगरीज भी आप लिख सकते हैं, लेकिन खैर मैंने यहाँ पर लिस्ट लिख दिया. ठीक है, नाउ दैट्स इट. अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो है इसके लिए हम एक जो है यहाँ पर एक मेथड को क्रिएट करते हैं. दैट इज बी अ प्राइवेट void and get all categories.
So here we need first to initialize this list. So now right here the list is equal to initialize this. So once that is initialized, नेक्स्ट हमारे पास जो है इसके लिए हम डेटाबेस से डेटा को गेट करते हैं. सो नाउ गो टू एनी वन the mv cru mv and then copy the for each loop and then paste here below. Okay, so this is the list. I'm going to add this list, and then next okay, the one thing is copy the db context class also, and now paste here, and I import the namespace of this db class context class, which is the db layer. And next we are going to add here the stock item category mv, और यहाँ पर हमारे पास जो है स्टॉक आइटम कैटेगरी टेबल. ओके, सो नाउ अब यहाँ पर हमारे पास जो फील्ड है, सो वो फील्ड चलिए मैं यहाँ से गो टू दिस mv model and now copy all the field from this model. Okay, and now paste here. Okay, so now the next is now remove these private, public and data type, and then is equal to this is the address. So now this is the category, and then category dot, और ये हमारे पास stock item category id. Okay, so now copy this and replace on the get set. Okay, यहाँ पर category हमारे पास so dot stock category, and the next is the user. So now dot user or created by. ओके, सो यहाँ पर अब हमें यूजर आईडी चाहिए, सो यूजर नेम चाहिए, सो और यूजर नेम इज इक्वल टू db डॉट यूजर टेबल डॉट फाइंड वेयर, जहाँ पर हमारे पास जो है कैटेगरी डॉट क्रिएटेड बाय यूजर आईडी डॉट फर्स्ट नेम, सॉरी यहाँ से हम इसका यूजर नेम जो है वो गेट कर देंगे, दैट इज द यूजर नेम. ओके, सो नाउ कॉपी दिस यूजर नेम एंड पेस्ट हियर. सो दैट्स इट. अब नेक्स्ट हमारे पास विजिबल स्टेटस है, सो डॉट विजिबल टेबल यहाँ पर रिट्रीव है हमारे पास, इसके साथ रिलेशनशिप है इसका क्या नहीं, चलिए इसको भी यहाँ पर सेट करते हैं. सो ये स्टेटस, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज यहाँ पर विजिबल स्टेटस टेबल, एंड देन दिस इज द विजिबल स्टेटस id and this is the status. Okay, and now copy this visible this status and paste here. So that's it. Okay, now copy this method name, simply copy the name and now paste here. Okay, so that's it. अब next हमारे पास जो है यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट करते जो हमारे लिए जो है रिकॉर्ड को अपडेट करेगा और क्रिएट करेगा. ठीक है, और दैट इज फॉर द एम्प्टी कंस्ट्रक्टर जो यहाँ पर सिर्फ इस फील्ड को इनिशियलाइज करेगा, अदरवाइज द प्रॉपर्टी विल बी इनिशियलाइज्ड वंस वी आर गोइंग टू क्रिएट this object for this table. Okay, so now next यहाँ पर हम edit के लिए यहाँ पर setting करते हैं. So var editor, this is the sorry, now var editor is equal to db dot stock category mv stock item category table dot फाइंड, और यहाँ पर आईडी के थ्रू इसको हम फाइंड करते हैं. फिर द नेक्स्ट इज डेटा, अगर ये हमारे पास नल है, ठीक है, सो सॉरी दैट इज नॉट नल, सो देन वी आर गोइंग टू इनिशियलाइज द फील्ड्स. ओके, और वो हमारे पास जो है दिस इज द स्टॉक. ओके, द फर्स्ट वी आर गोइंग टू इनिशियलाइज दिस, सो इज इक्वल टू ए डेटा डॉट stock item category id. This is the first one. The second one is the, why here we are getting this error, ambiguous between. Okay, this is not the, okay, now copy this and is equal to edit dot this one, and then the next is the stock item category. So now also initialize value to this property, and this is the editor dot stock item category, and the next is the visible status. So the visible status is equal to editor dot visible status id. Okay, so now that's it. अब अगर इसमें हमारे पास डेटा नहीं है या ये रिट्रीव नहीं हुआ डेटाबेस है, या मतलब यहाँ पर जीरो आ चुका है, सो देन
रिकॉर्ड विल बी नॉट फाउंड इन डेटाबेस। सो फिर यहाँ पर इसको जीरो कीजिए। सो वंस दिस रिकॉर्ड इज जीरो, सो दिस टाइम जो है यहाँ पर ये न्यू रिकॉर्ड जो है डिक्लेयर होगा कि दैट इज द न्यू रिकॉर्ड, ठीक है ना, डेटाबेस में ये न्यू रिकॉर्ड होगा फिर। सो नाउ एम्प्टी एंड दिस इज द जीरो। ओके दैट्स इट। अब हमें जो है इसको सेव करने और नेक्स्ट हमें जाना है यहाँ पर ये हमारे पास एक सेटिंग है, ठीक है। सेटिंग में हमारे पास यूजर रिलेटेड जो भी है यहाँ पर सेट हो चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें एक और सेटिंग को क्रिएट करने या एक और कंट्रोल को क्रिएट करने, दैट इज द स्टॉक, ठीक है। अब स्टॉक एक हमारे पास कंट्रोलर क्रिएट हो गया। अब इसमें हम स्टॉक रिलेटेड जो जितना भी काम है वो यहाँ पर हम करेंगे। सो नाउ वेट फॉर द क्रिएटिंग द स्टॉक कंट्रोलर। सो नाउ दैट्स क्रिएटेड। अब नेक्स्ट हमें इस सेटिंग में यहाँ पर जाइए और यहाँ से इसको मैं कॉपी कर दूँ। फर्स्ट वी आर गोइंग टू कॉपी द डीबी context class and now import the namespace, press all, enter, and then add the namespace which is the db layer. Okay, so next we are going to create here the action for to add the stock category, stock item category. So stock item category, okay। और यहाँ पर इसको हम नल करते आईडी को। ओके फर्स्ट यहाँ पर हम चेक लगाते हैं अगर यूजर लॉगिन नहीं है, सो देन डोंट गो टू लॉगिन, ओके, गो टू विजिट दिस व्यू। सो आई एम गोइंग टू कॉपी and then now paste here, okay। अब नेक्स्ट यहाँ पर न्यू या यहाँ पर मैं वॉर स्टॉक कैटेगरी कैटेगरीज, ओके, is equal to new CRU, okay। First I'm going to add here the namespace user using and then the pizza restaurant dot models, okay। And then next this is the CRU underscore, so the stock category MV, and I'm going to pass here the ID, okay। And then copy this name and pass to this get method, okay। So now that's it। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो है इसके लिए हम पोस्ट मेथड को बनाते हैं। सो दैट इज द HTTP post, and then next is the public action result, and then the stock, no I'm going to copy this and paste here, and this is the इस ऐसे मॉडल इसको हम पास कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे या यहाँ पर सिंपल स्टॉक कैटेगरी में लिखता हूँ स्टॉक कैटेगरी, ठीक है। एंड देन रिटर्न व्यू, और रिटर्न व्यू में हम इस स्टॉक कैटेगरी को रिटर्न करते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक और जो है सेटिंग यहाँ पर हम करते हैं वो हमारे पास है व्यू बैग का, ठीक है। सो व्यू बैग डॉट फर्स्ट हमारे पास इस व्यू बैग में क्या होगा, चलिए उसको सेट करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट विजिबल स्टेटस, ठीक है। सो नाउ कॉपी दिस विजिबल स्टेटस व्हिच इज इक्वल टू न्यू सेलेक्टेड लिस्ट, ठीक है। और इसमें हमारे पास db डॉट विजिबल स्टेटस टेबल डॉट टू लिस्ट, ओके। एंड देन कॉमा, और यहाँ पर हमारे पास जो है इस विजिबल स्टेटस टेबल को हम विजिट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है। सो नाउ दिस इज द आईडी विच इज द डेटा फील्ड, and then the next is the text field. This is the now see this is the selected value, okay। Next this is the data value field and this is the data text field यहाँ पर, ठीक है। So now I'm going to copy also, where is the visible, चलो pick the definition and also pick the definition, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। सो नो पेस्ट हेयर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी है। जो कैटेगरी है अगर ये एडिट के लिए आया है तो इसके साथ जो है इसका स्टेटस होगा जो विजिबल स्टेटस आईडी का, अदरवाइज अगर नहीं है तो दैट इज जीरो। सो यहाँ पर जो है सेलेक्ट स्टेटस जो है वो शो होगा। अच्छा अब इसको भी यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। सो दैट्स इट। सो नाउ अब यहाँ पर हम फर्स्ट जो है हमें चेक करना है इफ अगर, ओके। नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू सेट दिस चेक इफ द यूजर नॉट लॉग इन, फर्स्ट गो टू यूजर एंड लॉग इन, ओके। अब यहाँ पर इफ अगर
अच्छा, और एक और चीज़ भी यहाँ से हमें जो है इसको कन्वर्ट करना है और ऑलरेडी हमने कन्वर्ट किया भी है। सो दैट इज़ द यूज़र, यूज़र में हमने कन्वर्ट किया कि नहीं? नहीं, हमने नहीं कन्वर्ट किए, तो सो चलिए गागोट में हमारे पास यूज़र आईडी है ना, तो चलिए मैं इस सेशन को कॉपी करता हूँ एंड देन integer user id is equal to 0 and then n dot tryparse और tryparse में हमारा convert dot to string ये सेशन यूजर आईडी आउट और यहाँ पर यूजर आईडी हो जाएगा, ठीक है। नाउ दैट्स इट। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हमें इसको सेट करना है द स्टॉक कैटेगरी आईडी हमारे पास डॉट यूजर आईडी के द यूजर आईडी हमारे पास हो जाएगा एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद हम एफ अगर मॉडल स्टेट हम डॉट इज वैलिड, अगर ये इज वैलिड है सो दैट्स इट। अगर ये इज वैलिड है तो इसके बाद हम फर्स्ट यहाँ पर जो है चेक करेंगे इफ अगर स्टॉक कैटेगरी डॉट stock item category id is equal to 0, which means that is the new record, otherwise if not this will be the update the existing record। अच्छा, अब for check exist, ठीक है, is equal to db dot stock category item category dot where अगर इस नाम पे ऑलरेडी हमारे पास रिकॉर्ड है, ठीक है, डॉट स्टॉक कैटेगरी, तो फिर इसको ऐड ना कीजिए द स्टॉक कैटेगरी डॉट स्टॉक कैटेगरी। अच्छा, इसको ऐसा करते पहले इससे जो है स्पेसिस को ख़त्म करते फिर उसके बाद इसको टू अपर करते ताकि फिर सही तरीके से जो है इसका चेकिंग हो जाए, ठीक है। और इसको करते हैं डॉट फर्स्ट डिफॉल्ट, ओके, और इसके साथ इसको भी डॉट ट्रिम करते हैं फर्स्ट ताकि स्पेसिस वगैरह से रिमूव हो जाए और फिर उसके बाद इसको यहाँ पर सेट करते हैं टू अपर। टू अपर मीन्स कैपिटल, ओके ना, ओके। सो अच्छे दिस इज द स्टॉक कैटेगरी, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब अगर ये एग्जिस्ट है, ठीक है, एफ अगर check exist equal to null, so it means the card is not exist in the database and table which is the stock item category table, okay। So then for stock item stock category यहाँ पर मैं या यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर न्यू कैटेगरी और एडिट कैटेगरी ऐसे क्रिएट कर देंगे, ठीक है। सो नाउ विच इज द स्टॉक कैटेगरी टेबल एंड नाउ न्यू कैटेगरी डॉट फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा स्टॉक कैटेगरी इज इक्वल टू स्टॉक कैटेगरी एंड देन द स्टॉक कैटेगरी, ओके, द न्यू कैटेगरी डॉट और ये हमारे पास विजिबल स्टेटस इज इक्वल टू स्टॉक कैटेगरी डॉट विजिबल स्टेटस, दैट्स इट। अच्छा, सो नो राइट क्लिक एंड यहाँ पर हमने जो है सेट कर दिया स्टॉक कैटेगरी को, ठीक है। और ये अच्छा, अब इसलिए इसको सेट करते हैं, बस ये हमारे पास रह गया एंड दैट इज द सो नाउ न्यू कैटेगरी डॉट इज इक्वल टू स्टॉक कैटेगरी डॉट और यहाँ पर हमारे पास, चलिए इसको यूजर आईडी सेट करते हैं, वैसे भी ऑलरेडी हमारे पास जो यूजर लॉगिन है उसका आईडी हमने कन्वर्ट किया टू इंटीजर। अच्छा, अब यहाँ पर db डॉट स्टॉक आइटम कैटेगरी टेबल एंड देन डॉट ऐड और ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, दैट इज द न्यू कैटेगरी। so that's it। अब db डॉट सेव चेंजेस, अब अगर ये सेव हो गया सो रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन और एक्शन हमारे पास जो है वो स्टॉक कैटेगरी है कामा न्यू और ये हमारे पास रूट वैल्यू हो जाएगा id इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। अच्छा, अब अगर ये रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो यहाँ पर ये मैसेज ऐड हो जाएगा एंड दैट इज द मॉडल स्टेट डॉट ऐड मॉडल एरर और वो शो हो जाएगा स्टॉक आइटम कैटेगरी के साथ, डिजाइडेड, ओके, इसके साथ ये शो हो जाएगा और फिर ये कैटेगरी इस फील्ड के साथ, ठीक है। और यहाँ पर ऑलरेडी
रजिस्टर्ड, जो भी मैसेज आपको रखना है यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है ना। एंड नाउ दैट्स इट। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर, चलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको एडिट करता हूँ for getting the edit record. So first we need to change here some in this condition. So and और यहाँ पर ये s डॉट स्टॉक कैटेगरी आइटम कैटेगरी डी नॉट इक्वल टू, अगर ये इसको बराबर न कीजिए, मतलब विदाउट दिस रिकॉर्ड जो है चेक कीजिए कि ऑलरेडी रिकॉर्ड तो मौजूद नहीं है, क्योंकि अब जब वो इसको एडिट कर गया तो विजिबल नॉन विजिबल करेगा, और या इसको क्या करेगा, या इसको या तो नॉन विजिबल करेगा, और या रिकॉर्ड का नाम जो है वो चेंज करेगा, ठीक है ना। इसको चेंज कीजिए एंड नॉट इक्वल टू, ओके ओके, नाउ दैट्स इट। जब इसको हम एडिट करते हैं तो एडिट, और इसको भी एडिट करते हैं, नाउ दैट्स इट। अब इसको हम गेट करते हैं फ्रॉम डेटाबेस टू डीबी डॉट स्टॉक आइटम कैटेगरी डॉट फाइंड, इसको फाइंड कीजिए स्टॉक कैटेगरी डॉट इस आईडी, इसको डेटाबेस से गिट कीजिए, बाकी इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, स्टेटस भी, और किस यूज़र ने इसको क्रिएट किया वो भी इसको चेंज कर, वो यहाँ पर वो भी चेंज हो सकते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा, इसको अपडेट करने के लिए एंट्री, और ये और इसका स्टेट हमारे पास इज इक्वल टू डॉट मॉडिफाइड, ठीक है, मॉडिफाइड डीबी से चेंजेस होएगा, फिर दोबारा यहाँ पर ये रिट्रीव हो जाएगा। सो ये हमारे पास जो है अब यहाँ तक ये फिनिश हो चुका है। अब हमें यहाँ पर व्यू इसके लिए क्रिएट करने हैं, सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट क्लिक हियर एंड ऐड द व्यू, एंड नाउ सिंपली ऐड द व्यू, ऐड द व्यू। So now the view is added successfully. Just I am going to copy code from this user. So copy the code and then I'm going to paste here. इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट आई एम गोइंग टू चेंज हियर द मॉडल CRU and then I'm going to close this and then close also this and then I'm going to again open this, ताकि ये जो मॉडल है ये लोड हो जाए इसमें, ठीक है। और ये यहाँ पर स्टॉक हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा स्टॉक आइटम कैटेगरी, दिस इज द एक्शन नेम इनसाइड एंड दिस स्टॉक कंट्रोलर, और ये कैटेगरीज हो जाएगा स्टॉक कैटेगरीज, ओके। एंड नाउ यहाँ पर भी ये स्टॉक, सिर्फ यहाँ पर स्टॉक हम शो करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा स्टॉक कैटेगरीज, स्टॉक कैटेगरीज। I'm going to scroll, this is the user addresses, so stock categories and I'm going to scroll। अब यहाँ पर ये हमारे पास होगा stock item, this is the action which is the post action post method, so category, ये यहाँ पर है stock item category and also you will check here, this is the post method, okay। So now paste, और ये हमारे पास होगा controller is the stock, बाकी दैट्स इट। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये स्टॉक कैटेगरी आईडी हो जाएगा, और यहाँ पर जो है अब ये ड्रॉप डाउन है, ठीक है, जो विजिबल और नॉन विजिबल के लिए हमने यूज़ किया था, जो विजिबल नॉन विजिबल ऑलरेडी हमारे पास है, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सो नाउ रिमूव दिस, और यहाँ पर हमें बस सिर्फ जो ज़रूरत है वो है डॉट स्टॉक कैटेगरी आइटम कैटेगरी, सो नाउ कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कीजिए एंड एंटर द स्टॉक कैटेगरी, एंटर स्टॉक कैटेगरी, ओके। सो नाउ दैट्स इट। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो है द स्टॉक कैटेगरी आईडी, सो नाउ आल्सो दैट्स इट। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास स्टॉक कैटेगरी, और ये हो जाएगा किस जो है क्रिएटेड बाय, और ये स्टेटस हो जाएगा, ठीक है। एंड नाउ द लिस्ट, अब ये मॉडल डॉट लिस्ट, ओके, दिस इज द stock item category, here is the created by
एंड दिस इज द विजिबल स्टेटस, और यहाँ पर ये हो जाएगा स्टॉक आइटम कैटेगरी, दैट इज द एक्शन. ओके, एंड नाउ दिस इज द स्टॉक कैटेगरी आईडी, स्टॉक कैटेगरी आईडी, एंड नाउ दैट्स इट. सो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसको चेक करते हैं. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लिंक लेआउट पे चलते हैं, और लेआउट में इसको हम कॉल करते हैं यहाँ पर इनसाइड इन द एडमिन. ठीक है, एडमिन के लिए हमने यहाँ पर जो क्रिएट किया था, चलिए स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर ये था एडमिन एंड सब एडमिन के लिए. ठीक है, सो चलिए यहाँ पर मैं अच्छा, अब ऐसा करते हैं, स्टॉक एक और न्यू आइटम को यहाँ पर क्रिएट करते हैं, दैट्स टू बी द स्टॉक. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू कॉपी, और यहाँ पर एक और मेन्यू आइटम को क्रिएट करते हैं और हमारे पास स्टॉक हो जाएगा. इसके लिए भी वैलिडेशन यही रहेगा हमारे पास, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंजेस हम करेंगे और ये हमारे पास हो जाएगा स्टॉक. ठीक है, यूजर्स के लिए, कस्टमर के लिए, सबके लिए यहाँ पर हम सेटिंग करेंगे. ठीक है, यहाँ पर वैलिडेशन होगा 1 and 3, एडमिन और सब एडमिन ये एक्सेस करेगा. सो दैट इज द स्टॉक एंड दिस इज द स्टॉक आइटम कैटेगरी. स्टॉक आइटम कैटेगरी. ओके, एंड इज द स्टॉक कैटेगरीज. Categories. Okay, I'm going to remove this. इसको मैं रिमूव करता हूँ और इसको भी रिमूव करता हूँ, क्योंकि इसकी भी जरूरत नहीं है यहाँ. और दोबारा इस पे जाता हूँ, यहाँ पर ये हमारे पास इसमें यूजर वगैरह के आइकन है, मेरे ख्याल में. अच्छा, इसको भी रिमूव करता हूँ. तो अब ये हमारे पास जो है सेट हो चुका है. अब चलिए इसको रन करते और चेक करते कि हाउ इट्स वर्क द स्टॉक आइटम कैटेगरी व्यू. सो ये हमारे पास था कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द स्टॉक आइटम कैटेगरी. अच्छा, अब इस जो वीडियो है, इसका कोड आपको कैसे मिलेगा, इसका कोड नहीं है. ठीक है, ऑलरेडी वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप कर दी. पोस्ट पे मैंने जो इसके लिए जो है वो सॉरी ब्लॉग पे मैंने इसके लिए कोड इलियासॉफ्ट पे पोस्ट नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी ये कोड हमने कई बार जो इसको रिपीट कर दिया. सो आई होप कि इंशाल्लाह आप ये खुद करेंगे इस वीडियो से, इस कोड को देख के. सो इसमें कोई ऐसा खास लॉजिक नहीं था, इसलिए बस मैंने पोस्ट क्रिएट नहीं की. सो चलिए वेट करते हैं कि एप्लीकेशन हमारे पास रन हो जाए, तो फिर इसके साथ उसके बाद जो है इसको स्टेप बाय स्टेप जो है इसको चेक करते कि ये हमारे पास ये किस तरह जो है ये काम करते. ठीक है, सो नाउ सम assemblies आर लोडिंग. अच्छा, ये हमारे पास दो रन हो चुका है. सो नाउ दैट्स रन. अच्छा, अब ये रन हो चुका है. नेक्स्ट हमें जाना है यहाँ पर लॉगिन पे. लॉगिन ऑलरेडी है हमारे पास, ये एडमिन है हमारे पास. ठीक है, अब चलिए जैसे मैं लॉगिन करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी मेन्यू जो है आपको नजर नहीं आ रहा है. सो नाउ यू विल सी हियर, यहाँ पर अभी ये अच्छा, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 है. ठीक है, नाउ अपडेटेड. अभी हमारे पास लॉगिन हो चुका है. सो नाउ आई एम गोइंग टू दिस सेटिंग which is the user not setting stock, is a stock category. ठीक है, ओके. अब यहाँ पर हम स्टॉक जो है वो कैटेगरीज को ऐड करते हैं. चलिए मैं यहाँ पर कूल ड्रिंक्स ऐड करता हूँ, कूल ड्रिंक्स. ठीक है, और ये हमारे पास विजिबल होगा. सो नाउ दैट इज क्रिएटेड. ठीक है, यहाँ पर आ चुका है. अब नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पर ये डिश हो जाएगा, DESH है डिश, या DASH, और ये हमारे पास विजिबल हो जाएगा. ठीक है, कोल्ड ड्रिंक के हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेज है. ठीक है, मैनी टाइप ऑफ कैटेगरी यू. ओके, आई एम गोइंग टू सेट दिस फर्स्ट. ए जो है हमारे पास माल होना चाहिए. तो मैं इसे एडिट करता हूँ और यहाँ पर ए कर देता हूँ. ठीक है, इसे मैं अपडेट करूँगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी हमारे पास जो अपडेट हो चुका है. सो ये हमारे पास जो है कि हाउ टू create, update and retrieve the stock category and the pizza restaurant and drink SPRNMVC projects. सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सो काइंडली सब्सक्राइब द codewithilyasoft यूट्यूब चैनल्स. आल्सो वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.